Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Environment and Natural Resources, and under this chapter we have started this topic India's stand on environmental issues in the previous class. Okay. India's stand on environmental issues. Okay, so what we find that India, as we have seen that India is it is our part of our foreign policy that we always supported any international treaty and agreement. So whatever international treaty and agreement was done on environmental issues, India has supported all those agreements and these treaties. So Kyoto Protocol, which we have seen, is one of the most important agreement for this implementation of the environmental implementation of this environmental decisions which were taken in the Rio summit. So Kyoto Protocol, which was started in the year 1997, India signed and ratified this protocol in the year 2002. Okay, so signed and ratified Kyoto Protocol. टू 2002 में हमने क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन कर लिया और उसको रेटिफाई भी कर लिया. एंड वी हैव सीन दैट अंडर दिस क्योटो प्रोटोकॉल countries like which are the developing countries like India, not only India, other developing countries also, they were exempted from the requirements of the Kyoto Protocol, because it is said that our contribution is lesser in polluting the environment, so restrictions would also not be put on these developing countries. तो जो भी emission of greenhouse gases हुई है उसके लिए जो developed countries हैं they are responsible. So in this way Kyoto Protocol was a very reasonable one, because it is based on the reason that the countries which are responsible for a greater part of emission of greenhouse gases, they should be put under restrictions. Their economic activity, their industrial activity should be put under instruction. So for India there were no restrictions in this Kyoto Protocol. But here we see that there are many critics of Kyoto Protocol who says that this is not the correct method of exempting countries like India and China also. China is also exempted because China is also a developing country. So India, China, countries like India, China, which they are the most populous countries of the world. China is at the first place, India is at the second place, and they both are doing rapid industrialization. So it is not a good decision to not put any restrictions on these countries, any restrictions on the economic activities of these countries. There are many countries who believe that this is wrong, because sooner or later
these countries, especially China and India and other developing countries, will also be among the leading contributors to greenhouse gas emission. आज नहीं कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी दे विल बी लीडिंग कंट्रीब्यूटर इन दिस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो आपको रिस्ट्रिक्शंस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए. ऐसे कुछ जो क्रिटिक्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल के, उनका ये कहना है. बट क्योटो प्रोटोकॉल में हम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है. और जब ग्रुप 8 की मीटिंग हुई जून 2005 में, ग्रुप 8 की जो मीटिंग हुई, उसमें भी इंडिया ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि जो पर कैपिटा एमिशन रेट है हमारी, वो बहुत ही कम है. अगर हम उसको कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से, तो जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस का पर कैपिटा एमिशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा का फ़र्क है. वी आर ओनली वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़. सो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो अपनी बात को हमने रखा है और इस बात को माना भी गया है. और अभी जब G8 का जिक्र आया है, तो ये मस्ट नो इस ग्रुप 8 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या इसका मतलब होता है. व्हाट डू वी मीन बाय G8? ओके, सो ग्रुप 8 जो है वो 8 कंट्रीज़ का एक इंटरनेशनल ग्रुप है, जिसमें जो बहुत ही पावरफुल कंट्रीज़ हैं, US, UK, फ्रांस, देन जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा एंड रसिया. These are the countries which are the members of G8. बट इसमें आगे चल के 5 और कंट्रीज़ को इंक्लूड कर दिया गया जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड के. लाइक इंडिया इज़ ऑल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ दिस. नाउ दिस इज G8 + 5. ठीक है, इसमें 5 ऐड हो गए हैं कंट्रीज़. 5 कौन से कंट्रीज़ ऐड हुए हैं? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो इस तरह से इंडिया ने अपने व्यू पॉइंट को G8 के की जो मीटिंग थी उसमें 2005 में पॉइंट आउट किया कि हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है वो हमारा तो एक फ्रैक्शन ही प्रेजेंट करता है जो पर कैपिटा एमिशन डेवलप्ड कंट्रीज़ का है. सो इंडिया वेरी फर्मली सपोर्ट दैट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ curbing and checking this emission of greenhouse gas lies with the developed countries, and the developing countries are having lesser responsibility. So we have supported Kyoto Protocol in all its aspect, and we see that we have our responsibilities towards the environment, and there is very growing demand on this international community that there must be some restrictions on these emerging economies of the world like India, Brazil, China. These are really emerging economies, and they are going to contribute a lot in the greenhouse gas emission. So they must put under restrictions. But if we see the data regarding this emission of greenhouse gases, what we find that yes, it is rising. Per capita greenhouse gas emission is rising in countries like India and China. It's okay, but if we see the data, what is the data? Data says that by 2030, अगर हम 2030 को कंसिडर करें तो 2000 अभी तक जिस तरह से हो रहा है उसके बेसिस पे ये इस तरह के डेटा जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं कि 2030 तक ये ऐसा माना जाता है कि जो वर्ल्ड का एवरेज है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के पर कैपिटा में, इट वाज 3.8 टन्स. ठीक है, वर्ल्ड एवरेज इज 3.8
ठीक है। 3.8 टन्स जो है वो पर कैपिटा वर्ल्ड एवरेज है, वर्ल्ड एवरेज ऑफ पर कैपिटा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, वर्ल्ड एवरेज ऑफ पर कैपिटा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, दिस इज द डेटा ऑफ 2000। ये जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं ये 2000 का डेटा है। 2000 में पूरी वर्ल्ड का जो एवरेज था ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, दैट वाज 3.8 टन पर कैपिटा। अब अगर इंडिया के केस को हम देखते हैं तो ऐसा कहा गया है कि 2030 में जब हम पहुंचेंगे उस समय बाय दैट टाइम जो इंडिया का पर कैपिटा एमिशन ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होगा दैट विल रीच 1.6 टन्स। टू 2030 में ये 1.6 टन्स हो जाएगा, जो कि 2000 में वर्ल्ड का एवरेज 3.8 टन्स है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर 2000 में वर्ल्ड का एवरेज जो है वो 3.8 टन है, तो वो इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एवरेज होगा 2030 में, दैट विल बी 1.6 टन। और अगर 2000 में देखें तो ये इंडिया का कितना है, 0.9 टन। 2003 में ये 2030 में ये 1.6 टन है। और अगर 2000 को हम लोग देखें कि 2000 में इंडिया कितना पर कैपिटा गैस एमिशन इंडिया में हो रहा है, तो दैट इज 0.9 टन्स। तो ये क्या है, ये बहुत ही कम है कि नहीं। ये हमारा 2000 का डेटा है, ये हमारा 2030 का डेटा है। तो 2000 में हम 0.9 टन्स गैस एमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। और अगर यही वर्ल्ड एवरेज 2000 में 3.8 टन्स का है, तो कैन जस्ट इमेजिन कितने का टाइम्स अगर ये हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है पर कैपिटा में। तो इंडिया तो 1/4 के अराउंड है ना। और अगर हम 2030 को देखें तो तब तक बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इट्स ओके। बट इवन बाय 2030 द पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन इंडिया विल रीच 1.6 टन्स, जो कि वर्ल्ड के एवरेज से बहुत ही कम होगा। तो इसलिए इंडिया की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। स्टिल हमने सारे जो भी ग्लोबल एफर्ट्स हुए हैं इसके लिए, एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, हमने उसमें सारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलरली व्हाट वी आर डूइंग। ये तो एक मेन मुद्दा हो गया, इस पर आपका पूरा का पूरा एक पॉइंट बनेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल को हम सपोर्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट है कि हम कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आप इस डेटा को दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि keeping in mind this data, we can say that there is no need to put strict restrictions on the economic activities of countries like India. Okay, and now we come to this point ki what the Indian government has done in order to protect and to conserve the environment. Particularly क्या किया है, this was all about ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमने देखा कि हमारा क्या व्यू है और हम क्या किसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी was adopted by the government of India, and this policy mandates cleaner fuels for vehicles. ऐसे फ्यूल आपको नहीं यूज़ करने हैं जिससे कि जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो। तो सबसे पहले ऑटो फ्यूल पॉलिसी, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी इज द फर्स्ट थिंग which was done.
National Auto Fuel Policy. Which emphasizes on cleaner फ्यूल्स, है ना. देन दूसरा जो इंडिया ने एक और भी ऐसे लॉ पास किया है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. The Energy Conservation Law 2001. And we see that this law, it is an initiative to improve energy efficiency. कैसे हम एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है. इसी तरह से एक और एक्ट हमारे गवर्नमेंट ने बनाया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003. एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी Act of 2003, it encourages the use of renewable energy. जो ऐसे एनर्जी को यूज़ करिए जो रीन्यूएबल है ना. और जो नॉन रिन्यूएबल है उनको डिस्करेज करने के लिए कहा गया है. और नेचुरल गैस जो है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज है. जो बढ़ती हुई डिमांड्स है उस डिमांड को पूरा करना, और सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी हमें सोचना है. सो नॉट ओनली दिस, आवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो going to start the production of biodiesel, and it is about to be launched, this national mission on biodiesel. National mission on biodiesel. It is to be launched. बायोडीज़ल से हम क्या मीन करते हैं? बायोडीज़ल का मतलब है जैसे ऐसे डीज़ल जो कि प्लांट्स से हमें प्रोड्यूस हो सके. ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है. ऐसी चीज़ें जैसे जोजोबा एक होता है ना, जेट्रोफा नॉट जोजोबा, जेट्रोफा. उसके जो प्लांटिंग होती है इसी पर्पज़ से होती है बायोडीज़ल के. उसके जो फूल होते हैं उससे डीज़ल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है. जेट्रोफा की फार्मिंग भी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से करवाई जाती है, और उससे डीज़ल निकालने का काम हो रहा है. और इसके लिए हम देखते हैं कि काफ़ी इम्प्रेसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पॉलिसीज़ हैं. इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. और इसके अलावा हमने ये सारे हमारे नेशनल लेवल के एफर्ट्स हम कहेंगे. इंटरनेशनल लेवल पे हमने देख लिया कि हम क्योटो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं. नॉट ओनली दिस, हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि 2 अक्टूबर 2016 को हमने उसको भी रेटिफाई कर दिया. तो इंडिया जो है वो अपनी तरफ से पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना. तो ये हमारा मेन हो जाएगा. और अगर हम रिव्यू करें कि जो भी एग्रीमेंट्स हुए अर्थ समिट में, रियो में, उसमें क्या हुआ, उसका जो हम कहें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ. तो what was found that as we have seen under this Rio summit,
what was done, it was क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि 3 तरह की कंट्रीज़ होंगे. द कंट्रीज़ विथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और सेकंड वाला जो कैटेगरी था दैट वाज कंट्रीज़ विथ डेवलप्ड कंट्रीज़ विथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उनको ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करना था डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि वो अपने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है उसको उन टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ से जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है वो कम हो जाएगा. बट इंडिया ने जब इसको रिव्यू किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा कि सही में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, तो यही पता चला कि कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं हुआ है. द डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट transferring new and additional these technologies, and they are not helping financially as well the developing countries in doing all these things जो कि उनको responsibility दी गई थी developed countries को, but they are not fulfilling their responsibilities. It is the review done by India, and it is very much important if we really want to protect our environment. Technological transfer is very much important, because it is a known fact that the developing countries are far behind the developed countries in terms of technology, and we can say the environmentally sound technology, the technologies which helps in checking the greenhouse gases, which helps in protection of the environment. These technologies must be transferred at concessional rate, and that is important, because the developing countries cannot afford that kind of financial burden. तो इसलिए उन पर दिया गया ये financial responsibility पर, but they are not fulfilling their responsibility in an effective manner. And that is why it is important that there should be immediate transfer of technology. It is the view of India, and that will also come under this heading, what India's stand on environmental issues. And the next one is India is of the opinion that SAARC, about which we have studied earlier, the South Asian Association for Regional Cooperation. This SAARC countries should adopt a common position on global environmental issues. जब उनका एक कॉमन पोजीशन होगा तो फिर उनके वॉइस की वेट होगी. सो इसलिए इंडिया का ये भी ओपिनियन है कि सार्क के थ्रू हम इन मैटर्स को आगे बढ़ाएं. सो इंडिया का जो भी व्यूज़ है उसको हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम एक दूसरी टॉपिक पर आएंगे, एंड दैट इज़ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स. So many movements are taking place in the world, so we will see environmental movements. Okay, so what do we mean by movement? Movement का मतलब होता है जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर किसी डिमांड को रखते हैं, किसी डिमांड के लिए वो तरह तरह के मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, उसको हम पीसफुल मेजर्स, नॉट एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मूवमेंट. सो पीसफुल मेजर्स से जब हम जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन पर प्रेशर करते हैं तो उसको हम मूवमेंट के नाम से जानते हैं. एंड वी सी दैट environmental degradation is one of the biggest challenge of present time. We are facing the problem of ozone layer depletion. We are facing the problem of global warming and climate change. So we have seen that for that purpose the international governments, they came together, and they have done so many treaties and protocols, and everything is done, है ना. हर कुछ किया जा रहा है. everything is not done. We can say that efforts are going on to preserve the
environment to protect the environment. But now we see that there is another challenge also, and this challenge have this is not from the government, but from groups of environmentally conscious volunteers. These volunteers are working in different parts of the world. Okay, जो ये environmentally conscious volunteers हैं, इनका ये कहना है some of them work at the international level. कुछ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, बट ज़्यादातर जो हैं वो लोकल लेवल पर ही काम करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट होम, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटली कॉन्शियस वॉलेंटियर्स. ठीक है, दीज आर वॉलेंटियर्स. और वो किसी गवर्नमेंट के अपॉइंटेड नहीं है, दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय एनी गवर्नमेंट, दे आर वॉलेंटियर्स. ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ वॉलेंटियर्स दे आर? एनवायरमेंटली conscious okay. So these are the people, these volunteers are responsible for this environmental movement. हम जिस environmental movement की बात कर रहे हैं, वो करने वाला कौन है? वो करने वाले ऐसे ही environmental conscious volunteers हैं. And some of these environmental movements are taking place at the global level, but most of them are taking place at the local level only. And these are very vibrant, diverse and powerful social movements across the globe. Okay, and we see that these movements raise new ideas and long-term vision of what we should do and what we should not in our individual and collective lives in order to protect the environment. So it's very, we can say, actual work is done by these movements, because they raise a kind of awareness among the people that what should be their proper behavior, how should they do the work in order to protect the environment. So if we see the contemporary environmental movement, we see it is full of diversity. So many different types of movements are going on in the whole world. Like we see in Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, then in some parts of Africa and India, forest movements are going on. Forest movements, forest को बचाने के लिए. If you see the example of India, what चिपको मूवमेंट है ना, चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया उत्तरांचल में, दैट वाज फॉरेस्ट मूवमेंट. कि जब पेड़ों को काटने के लिए अथॉरिटीज़ आते थे, उस समय क्या हुआ था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि जो उत्तरांचल में जो फॉरेस्ट है, दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अ स्पोर्ट्स कंपनी, कि वो उस फॉरेस्ट की लकड़ियों को दे कैन यूज़ दैट वुड फॉर मेकिंग देयर स्पोर्ट्स गुड्स. तो फॉरेस्ट के लिए जब वो काटने के लिए जब कंपनी के लोग आते थे, तो पीपल यूज टू क्लिंग टू द ट्री, उससे वो चिपक जाते थे कि मतलब वो नहीं काटने देंगे. तो दिस इज़ फॉरेस्ट मूवमेंट, वन ऑफ द एग्जाम्पल. इस तरह के साउथ में, अगर हम साउथ को देखें, जो ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह के मूवमेंट कई सारे कंट्रीज़ में चल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी भी है. बिकॉज इन कंट्रीज़ में भी बहुत हाई रेट से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस, जो भी डिस्कशंस हैं उन सबको आपको मिला के चलना है. नथिंग इज़ इन आइसोलेशन, है ना. जो साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पर प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन
बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन कंट्रीज़ में, और इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द दिस एनवायरनमेंट, है ना। सो वी सी दैट फॉरेस्ट मूवमेंट्स आर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस एनवायरमेंटल मूवमेंट। ओके, एंड देन वी सी कि आगे अगर और भी चीज़ें देखें तो मिनरल इंडस्ट्री जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, है ना। एंड वी सी दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ साउथ इन ग्लोबल साउथ आर नाउ दे आर नाउ ओपन टू द MNCs, है ना। अब तो MNCs सभी जगह आ रहे हैं। तो MNCs जो आ रहे हैं, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ अडॉप्टेड दिस new economic policy which is based on liberalization, globalization and privatization. So because of liberalization, now multinational companies are coming into all the developing countries. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मिनरल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ MNCs, एंड ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, वाटरवेज और लैंड का पॉल्यूशन हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है। अगर हम 1991 के बाद के कंडीशन को देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, एंड दीज ऑल आर लीडिंग टू द एनवायरमेंटल कंसर्न। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वी विल कंटिन्यू with this discussion in the next class.